Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online lecture series on electronic devices and circuits. This is Muhammad Uwais, your course instructor. So now it has been like two lectures that we are discussing this topic of inverting configuration, and I hope कि अब ये आपको काफी clear हो चुका होगा. Today in this lecture we are going to discuss another very important application of this inverting configuration, and after that we shall move on to the non-inverting configuration. So students, this is the application, a very important application, and it is called the weighted summer. ठीक है, weighted summer क्यों कहा जाता है इसे? Basically here you will see that this is a single feedback resistor जैसे हम पीछे use कर रहे थे, जिसको हम वहाँ R2 कह रहे थे. Here we do not have a single input but rather we have multiple inputs. So V1, V2 and dot dot till Vn. Multiple हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. So अब हम यहाँ देखने ये जा रहे हैं कि आउटपुट जो होगा, that output will have contribution from all these inputs. So it will have part from V1, part from V2, and similarly the other participation will also be from other inputs will also be included in V0. बट इनके जो इफेक्ट होने वाला है यानी V1 की जो कंट्रीब्यूशन हो रही है, this will be different from V2. It can be different, it's not necessary it is different, it can be different. So we now shall have basically an output voltage which will be depending on the weighted sum of various inputs. ठीक है, देखते हैं किस तरीके से. हमें ये मालूम है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस रेजिस्टर है, फीडबैक में RF है और मल्टीपल इनपुट टर्मिनल्स हैं विच आर कनेक्टेड थ्रू द रेजिस्टेंसेस. ठीक है, इनपुट टर्मिनल रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड सिमिलरली द अदर रेजिस्टेंस अप टिल Rn. ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे अगेन कि हमारे पास गेन इज इनफाइनाइट, ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट, सो दैट अ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट. सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी जीरो. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू ड्राइव द रिलेशनशिप फॉर वी नॉट. स्टूडेंट, देयर इज नथिंग न्यू एट ऑल. If even if I do not teach you this and ask you in the exam, you should still be able to find out the relationship between V naught and other inputs. ठीक है, using the analysis which we have been carrying out so far. ठीक है, तो चलिए इस अगली स्लाइड पे देखते हैं. So let's continue with our analysis. The circuit is here, but the procedure of analysis remains the same. जैसे हम पीछे करते हैं, हम क्या करते थे, सबसे पहले हमें पता चल चुका है this current is this voltage is zero because of virtual short circuit. एक virtual ground यहाँ पे हो चुका है. अब we have to find out the value of this I. अभी तक हम जो use कर रहे थे, there was only one resistor, but now we have multiple resistances in this circuit. So this I will be actually the sum of all the currents which is flowing into these resistances. ठीक है, by using simply KCL. So अगर आप KCL apply करेंगे, then you will see that I is equivalent to I1 plus I2 plus dot 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 IN. ठीक है, तमाम करंट को आप add up करें तो you will get the value of your current. And the value of this current I1, for instance, is given by simply V1 minus 0 upon R1. This I2 will be V2 minus 0 upon R2, and Vn will be IN will be Vn minus 0 upon Rn. So बहुत आसान है, we have to apply KCL and इसके अंदर इन इक्वेशन को प्लेस कर देने हमने. ठीक है जी, ये वही इक्वेशन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. सेम स्टूडेंट्स, सेम वही काम किया हमने जो पीछे किया था, बट अब चूंकि यहाँ मल्टीपल रेजिस्टर्स है तो हमने ये काम मल्टीपल बार किया है. And then by after applying KCL, this will be your relationship. ठीक है, ओके जी. अब हमें फिर इसके बाद क्या करना है, फ्रॉम दिस वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई. फिर अगला स्टेप क्या होता था, अप्लाइंग KVL. ठीक है, KVL के लिए क्या करना पड़ता था, हम कहते थे कि ये वोल्टेज है एंड दिस वोल्टेज इज V1 एंड इसके ऊपर हमने एक KVL अप्लाई कर देना है. वंस यू अप्लाई KVL, you will get the relationship for your V0. क्योंकि this I is going through RF, यही वजह है कि हमने पहले I की वैल्यू निकाली है. ठीक है, हम I निकाल चुके हैं, we know what is the value of I. इन तमाम वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें, you will get the value of I. So by applying KVL, this will be the value of your V0. और हमने करना है कि आप सिर्फ I की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए. अब ये रिलेशनशिप मेरे पास आ गया. हैव अ लुक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि V0 is now actually depending on V1, V2 and all other inputs as well till Vn. ठीक है, लेकिन हर एक की जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है. फॉर इंस्टेंस ये कंट्रीब्यूशन क्या है, दिस इज RF अपॉन R1
ठीक है, एंड दिस इज आर एफ अपॉन आर टू। तो आप अपनी मर्जी से इनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज आर एफ अपॉन आर एन। अब ये जो वैल्यू है आपके पास, दीज आर नथिंग बट द वेट्स, ठीक है, ये वेटेज है आपके पास, आप इन सबको फिर एंड में सम कर रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली है क्या, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग योर वेट्स, तभी इसे हम कहते हैं वेटेड सम, ठीक है। बाहर एक माइनस लगा हुआ है, वो अपनी जगह दुरुस्त है कि एक्चुअली आपके पास यहाँ पे होगा क्या, जो इक्वेशन होगी उसके इसमें आपके पास माइनस आ रहा होगा। इसको भी ओवरकम करने का तरीका है स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज इज वेटेड सम ऑफ इनपुट सिग्नल्स V1 V2 एंड Vn, एंड ईच समिंग कोफिशिएंट जो है, समिंग कोफिशिएंट कौन से, ये RF अपॉन R1 RF अपॉन R2, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं बाय सिंपली एडजस्टिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग फीड इन रजिस्टर। ये जो R1 R2 रजिस्टर, इनको हम इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और इन्हें हम यहाँ पे फीड इन रजिस्टर के तौर पे भी कह सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रहे कि यहाँ पे माइनस आपके पास जरूर आएगा। अगर आपको सब के सब प्लस में चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखते हैं। So students, in previous circuit of weighted summer, there was a constraint that all the summing coefficients were negative. यानी जितने भी V नॉट की इक्वेशन में आप देखते हैं तमाम की तमाम टर्म्स नेगेटिव थी, जो कि ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस नजर आए थे पिछली स्लाइड पे। अगर माइनस को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो वो तमाम के तमाम के साथ वो नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा एंड ऑल द टर्म्स विल बी नेगेटिव। बट ओकेजनली वी डू नीड कंट्रीब्यूशंस व्हिच शुड बी पॉजिटिव, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, वी व्हाट वी डू इज वी प्ले इंटेलिजेंटली। वी नो दैट जब दो नेगेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, माइनस एंड माइनस रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सो हम करने ये जा रहे हैं कि अब एक सर्किट आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे आप बेसिकली पॉजिटिव भी कंट्रीब्यूशन ले सकेंगे इनपुट की और नेगेटिव भी ले सकेंगे, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। ये सर्किट आपको मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, देयर इट इज, हैव अ लुक। ये आपको यहाँ सर्किट नजर आ रहा है, दिस इज योर सर्किट वन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑप एम्प एंड दिस इज योर सेकंड ऑप एम्प। हम कर क्या आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास इफ यू सी देयर आर नाउ फोर इनपुट, सो V1 V2 V3 एंड V4, ठीक है। सो मुझे ये मालूम है कि अगर मैं सिर्फ एक ऑप एम्प यूज करता हूँ तो मुझे क्या कंट्रीब्यूशन मिलने वाली है, वो ऑल टर्म्स विल बी नेगेटिव इफ आई ओनली कंसिडर दिस सर्किट फॉर इंस्टेंस, ठीक है। पहले वाले सर्किट को इग्नोर कर दें तो मेरे पास क्या होगा, दिस V नॉट विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम V3 एंड V4, एंड वो होगी क्या, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। इट विल बी दिस माइनस माइनस RC अपॉन R3 एंड देन sorry minus RC upon R3 into V3 and then minus RC upon R4 into V4, ठीक है। बट यू सी V नॉट के अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही तमाम की तमाम नेगेटिव आ रही है। अब अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जिन टर्म्स को मुझे पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, उनको मैं एक और वेटेड समर से गुजारता हूँ। यहाँ से ये टर्म्स नेगेटिव होके आ रही होंगी और दोबारा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल रिजल्ट इन अ पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है। सो बेसिकली इसको अगर आप सेम वही सर्किट एनालिसिस करें, यू कैन सिंपली शो दिस दैट V नॉट विल बी इक्वल टू दिस रिलेशनशिप। अब यहाँ देखिए, कुछ टर्म्स आपको नेगेटिव नजर आ रही हैं और कुछ टर्म आपको पॉजिटिव नजर आ रही है। दो टर्म पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। नेगेटिव वाली कौन सी टर्म्स हैं, विच हैव बीन ओनली पास्ड थ्रू दिस वेटेड समर वंस, ठीक है, V3 एंड V4, जबकि V1 और V2 जो है दीज हैव बीन पास्ड ट्वाइस थ्रू समर, वेटेड समर, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेगेटिव को गेन है। सो नेगेटिव एंड नेगेटिव दो बार जब करते हैं तो दिस रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब ये किस तरीके से ड्राइव हुए, लेट्स हैव अ क्विक लुक। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ ये किस तरीके से बेसिकली रिलेशनशिप आया है। तो थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई सर्किट, अभी इसको इसको भूल जाते हैं और हम यहाँ एक नाम दे देते हैं इसको, लेट सपोज लेट दिस बी, इसको हम बोल देते हैं Vx कह देते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। सो वी नो दैट अगर मुझे इस V नॉट की इक्वेशन लिखनी हो एंड आई एम ओनली कंसिडरिंग दिस पार्ट, ठीक है, आई एम ओनली कंसिडरिंग दिस पार्ट, तो मुझे मालूम है कि दिस V नॉट इज गिवन बाय, this can be given by simply by minus, क्या हो जाएगा, this will be minus RC upon, let this be in fact it is RB, minus RC upon RB and this will be Vx, ठीक है जी। सिंपल वेटेड समर का फॉर्मूला अप्लाई करें, then this will be minus RC upon
and this will be R3 minus RC upon R3 into V3, and lastly this will be minus RC upon R4 into V4. ठीक है students, this is RC. This is equation for V0. So now we do not know the value of Vx. ठीक है, V3 and V4 are my inputs. We have to find out the value of Vx. So what is Vx? How can we find out the value of this Vx? Again, we have to now use this other circuit. ठीक है, Vx के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को अब हम यूज करने जा रहे हैं. Have a look. सेम उसी तरीके से जैसे हमने यूज किए. So Vx की इक्वेशन क्या होगी? This Vx will be simply given by minus RA upon R1 into V1, and then this will be minus RA divided by R2 into V2. ठीक है, रिमेंबर अब यहाँ पे क्या है, माइनस आर है. ठीक है, दिस इज Vx. नाउ इफ यू पुट दिस Vx into this equation, ठीक है, इफ यू पुट into this value of Vx into this equation, you will see कि ये जो आपके पास माइनस टर्म्स हैं ये दोनों क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी. सो दिस विल बी नथिंग बट फॉर इंस्टेंस RC R2 into RA upon R1, and this term will be RC upon R2, sorry RC upon RB into RA upon R2. तो इक्वेशन सेम वही आ जाएगी जो हमने पीछे डिराइव की हुई है. ठीक है, इसका एक आसान तरीका है इसको याद रखने के लिए, जिनको आपने नेगेटिव रखना है उनको सिर्फ एक बार पास करें, जिनको पॉजिटिव करने हैं उन्हें दो बार करें. और नेगेटिव को गेन लिखना बड़ा आसान है, डायरेक्ट लिखिए. सो दिस इज फॉर इंस्टेंस RC अपॉन R3. ठीक है, और पॉजिटिव को क्या करें, दो बार लिखें, RC अपॉन R3 इसका आएगा एक तो. ठीक है, सॉरी RC अपॉन RB, यहाँ पे अगर पॉजिटिव के लिए लिखना है सो इट विल बी RC अपॉन RB इंटू RA अपॉन R1. ठीक है, जो आपको यहाँ मिल रहा है. एंड दिस फॉर इंस्टेंस इस पार्ट का मुझे लिखना है इसके लिए, तो दिस विल बी RA अपॉन R2 मल्टीप्लाई विद RC अपॉन RB. ठीक है, सो इस तरीके से हम बेसिकली इस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया. आई होप अभी आपको मजीद क्लियर हो गया हो. Okay students, now let's have a quick look on this example. This is exercise D2.7 from 7th edition, Sidra Smith. We have to design an inverting op-amp circuit to form the weighted sum V0 of two inputs. ठीक है, हमें weighted summary यूज करना है, V0 की वैल्यू निकालनी है in terms of two inputs. यहाँ पे बता दिया कि inputs हमारे पास सिर्फ दो हैं, यानी कि एक V1 है और V2 है. ठीक है, कंडीशन क्या है, it is required that V0 is equal to minus V1 plus 5V2. So basically if you see तमाम की तमाम टर्म्स नेगेटिव हैं, minus V1 minus 5V2. ठीक है, तो यहां से मुझे ये चीज पता चल रही है कि अब जो मुझे वेटेड समर यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, विद अ सिंगल ऑप एम्प. ठीक है, चूज वैल्यूज फॉर R1 R2 एंड RF so that for a maximum output voltage of 10 volts the current in feedback resistor will not exceed 1 milliampere. ठीक है, सबसे पहले काम होगा कि इस सर्किट को बनाना. हमें मालूम है बिल्कुल इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जैसे यूज करते हैं, वेटेड समर का सर्किट हमने बनाना है. एंड दिस विल लुक लाइक सिमिलर टू दिस सर्किट. ठीक है, द ओनली डिफरेंस विल बी कि अब यहाँ पे आपके पास ये कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही होगी, एंड सिमिलरली इक्वेशन में ये टर्म्स आपको नहीं मिल रही होंगी. वी विल बी ओनली गेटिंग दीज टर्म्स. ठीक है, ये हमारे पास इंक्लूड होगा सर्किट में, दिस इज इट एंड दीज टू टर्म्स. ठीक है, अब हमें वैल्यूज निकालनी है. कैसे निकालें, हमें बता दिया गया है, एक तो हमें ये मालूम है कि ये रिलेशनशिप है. ठीक है, अब इसके लिए आप RF R1 की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज बताई गई है, सो दैट sorry it says choose the values such that for a maximum output voltage of 10 volt, यानी कि अगर यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, for a maximum voltage of 10 volt the current in the feedback resistor will not exceed 1 milliampere. यानी ये जो करंट है, let this be IF, so हम कहते हैं this IF should not exceed 1 milliampere. ठीक है, सो हम IF की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डिजाइन कर लेते हैं. फॉर इंस्टेंस आप इससे डिफरेंट वैल्यू पे भी डिजाइन कर सकते हैं, इस बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर करते हैं. लेट IF इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमम कंडीशन के ऊपर हम डिजाइन कर लेते हैं. सो लेट IF इज इक्विवेलेंट टू 1 मिली एम्पियर. ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे जो बात हो रही है ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. सो इट इज 1 मिली एम्पियर. यहाँ पे आपको गिवन है दैट मॉड इज ऑफ IF इज इक्विवेलेंट टू 1 मिली एम्पियर, मॉड ऑफ IF. तो हम कह सकते हैं कि this is 1 milliampere. So अब IF की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, this IF will be
It is given by 0 minus 10 अपॉन, इस सर्किट को यूज करें अपॉन आर एफ, एंड दिस इज मॉड इक्विवेलेंट टू 1 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो मॉड में करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, एंड यू विल सी दैट आर एफ इज इक्विवेलेंट टू, आर एफ विल बी इक्विवेलेंट, आर एफ को मैं किस तरीके से निकालने जा रहा हूँ, इट विल बी 10 अपॉन 1 मिली, ठीक है, 10 upon 1 milli, which comes out to be equivalent to 10 kilo ohm. So this is one possible value of RF. This is one possible value of RF and it comes out to be 10 kilo ohm. अब मुझे RF की वैल्यू पता चल चुकी है। Now this is my equation. Have a look. V naught RF की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ. I can easily find out the value of R1 and R2. ठीक है, RF is 10 kilo ohm. So चूंकि यहाँ पे this term is 1, V1 की जो contribution है वो 1 है. So therefore the value of R1 has to be 1. ठीक है, क्योंकि R1 and RF is going to cancel out each other, so that answer is 1. ठीक है, so हमें R1 की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी, 10 किलो ओम। What about the value of R2? क्योंकि R2 की कंट्रीब्यूशन यहाँ 5 रखनी है हमें, so we know that RF is equal to 10 kilo ohm, therefore the value of R2 has to be 2 kilo ohm. So this is how you actually solve these kind of questions. I hope इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा। Okay students, now let's have a look another example of weighted summer application. ठीक है, यहाँ पे एक output आपको given है, and this has been given in terms of 3 inputs, V1, V2 and V3, and we have to design the circuit so that we get such an output. So यहाँ आपको 3 contribution नजर आ रही है, V1, V2, V3 की, और you know that V1, V2 are positive whereas V3 is negative. तो करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे दो weighted summer, दो ऑप एम्प यूज करने पड़ेंगे इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में। फॉर पॉजिटिव यानी कि V1, V2 की जो सिग्नल्स हैं उन्हें आपको दो बार गुजारना पड़ेगा फ्रॉम बोथ ऑप एम्प्स, whereas for V3 the signal has to be only passed through just one op amp. ठीक है, सो जो सर्किट होगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हम देख चुके हैं विद ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे हमारे पास V4 नहीं है तो हम ये इसे यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली इक्वेशन में भी हमें ये पार्ट नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट, सर्किट ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस। सिंस नो कंस्ट्रेंट इज गिवन टू यू, you can use any possible value of the resistance. Just you have to make sure that this term is equivalent to 4. ठीक है, this whole term is equivalent to 1 and this whole term is equivalent to 2. ठीक है, आपने डिजाइन करना है। जैसे कि एक पॉसिबल आंसर आपको यहाँ गिवन है, so you can check, for instance, the value of RC has been taken 10. If RC is 10, R3 has to be 2.5 as can be seen here. ठीक है, जनरली हमारे पास कुछ और कंस्ट्रेंट्स भी गिवन होती है जिन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए आपको इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, सो आई होप ये भी आपके पास एक एग्जांपल से आपको मजीद थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। Okay, now we have completed the inverting configuration. Let's have a look at the non-inverting configuration for op-amps. So students, here is the circuit for in non-inverting configuration. You see the input has been applied directly to the positive input terminal. ठीक है, इसके अलावा you see two resistances R1, R2 वहाँ पे भी यूज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज हो रही है। ठीक है, input is directly connected, ये तो हम देख चुके हैं, और R1 is connected between ground and this negative terminal, whereas R2 is connected in this way so that it provides a feedback. So output and inputs are linked through this resistor R2. अब इसकी एनालिसिस कैसे करनी है, V नॉट कैसे निकालना है, let's have a look. Okay students, so now let's continue our analysis and find out the voltage gain. बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पीछे करते आए हैं। ये वोल्टेज VI है, because of short circuit this will be, because of virtual short circuit this will also be equivalent to VI. ठीक है, and now this is VI and this is 0. ठीक है, so current flows from higher potential to lower potential, therefore this is the direction of current of I1 which has been taken. So I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, this I1 will be then VI minus 0 upon R1, यानी कि VI upon R1. ठीक है, and this will also be equivalent to I2. ठीक है जी, अब चूंकि I1 इस डायरेक्शन में है तो this should be the direction of I2. And now what we have to do, we have to apply KVL, and KVL can be simply applied in this direction. ठीक है,
इस डायरेक्शन में आप केवीएल अप्लाई कर दें, आप अपोजिट में लगाना चाहें अपोजिट में लगा दें, डजेंट मैटर। क्या किस तरीके से होगा, दिस विल बी माइनस वी नॉट प्लस आई टू आर टू प्लस वी आई। जब आप ये केवीएल अप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस रिलेशनशिप फॉर वी नॉट, ठीक है जी। और जब आप ये रिलेशन अप्लाई करेंगे तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज गेन, एंड नाउ यू सी दिस वोल्टेज गेन इज गिवन बाय 1 प्लस आर टू अपॉन आर वन, ठीक है जी। सो दिस इज द वोल्टेज गेन फॉर द नॉन इन्वर्टिंग configuration. So students, the voltage gain as we saw in the previous slide is positive here, unlike the inverting configuration जहाँ पे voltage gain was negative, ठीक है। अगर इनपुट इम्पिडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस इज इनफाइनाइट, वाई, बिकॉज जो इनपुट सिग्नल आप अप्लाई करें वो डायरेक्टली आप टर्मिनल पे अप्लाई करें, पॉजिटिव टर्मिनल पे, एंड सिंस नो करंट इज फ्लोइंग इनटू एन आइडियल ऑप एम्प, देयरफॉर इनपुट इम्पिडेंस इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट एज इट इज voltage divided by the current, and since current is zero therefore impedance is going to be infinite. अगर आप आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी जीरो है, क्यों, क्योंकि इट इज हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ इंफिनिटी, ओपन लूप की जो हमने बात की थी, ठीक है। बट इफ यू डू नॉट टेक वोल्टेज गेन टू बी इंफिनिटी, उसे फाइनाइट लेते हैं फॉर इंस्टेंस, तो दिस इज द रिलेशनशिप फॉर द ओवरऑल वोल्टेज गेन, बिल्कुल उसी तरीके से ड्राइव हुई है जैसे हमने इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में की थी, ठीक है। और अगेन अगर आप इस टर्म को, जिसको मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ब्लू से, इसको अगर आप मिनिमाइज करते हैं इस टर्म को, इसको बहुत स्मॉल रखते हैं, तो देन डिपेंडेंस ऑफ दिस जी ऑन ए बिकम्स मिनिमल। An application of non-inverting configuration is the voltage follower. Voltage follower एक ऐसा सर्किट है जिसमें आउटपुट इज फॉलोइंग द इनपुट। जैसे हमारे पास बीजीटीज में हमने देखा था, तो देयर इट वाज बेसिकली कॉमन कलेक्टर, और अगर हम सोर्स में बात सॉरी मॉसफेट्स में बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा था, बेसिकली कॉमन ड्रेन, ठीक है। तो उसी तरीके के सर्किट आप ऑप एम्प के जरिए भी बना सकते हैं इन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। हैव अ लुक एट दिस सर्किट। अब इस सर्किट में आप देखिए, आपको क्लियरली यहाँ नजर आ रहा है कि अगर आप वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की बात करें तो जो वोल्टेज आपको यहाँ मिल रहा है वही वोल्टेज आपको यहाँ मिलने लगा है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू वी आई, व्हिच मींस दैट वी नॉट इज इक्विवेलेंट टू वी आई। सो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं कई बार, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ बफर एम्पलीफायर। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है क्योंकि अगेन ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो, ठीक है। तो जहां पे हमने कॉमन ड्रेन कॉमन कलेक्टर की एप्लीकेशन देखी थी, वहीं पे हम ऑप एम्प को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द यूनिटी गेन एम्पलीफायर, वाई, बिकॉज द वोल्टेज गेन हियर इज इक्वल टू 1. Students, now let's have a look at some example problems of non-inverting configuration. So this is 2.13 again from 7th edition Cedro Smith, and the circuit has been shown to you. This is exactly similar to what we did for inverting configuration. We have to find out the currents, the voltages, and some other parameters. So सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है? We have to find out the value of I1. This is I1. We know that the current flowing here is 0. Therefore I1 is equivalent to 0. ये मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू बिकॉज दिस इज वेरी इजी, वी आर डिस्कसिंग इट and then you will do it yourself. If you find problem you can come back again. So we know that I1 is equivalent to 0. Why? Because this is considered to be an ideal op amp. If this is 0, okay fine, this is 0 and we know that this voltage is 1 volt, then by virtual short circuit this voltage has to appear here. Therefore this V1 has to be 1 volt, as can be seen here. So V1 is 1 volt. Now we know that this is 1 volt, this is 1 volt. Then what is the value of this current I1? So this current will be, this will be nothing but this 1 minus 0 divided by 1 kilo ohm, and comes out to be 1 milliampere. So therefore I1 is also 1 milliampere and I2 is same as I1 because there is no current flowing here. Therefore I2 is equivalent to I2 is also equivalent to 1 milliampere. Then we have to find out the value of V0. Again for V0 we have to apply the KVL, and this KVL will be again in this direction, ठीक है। लगा लेते हैं हम यहाँ पे, apply it, ठीक है। So this will be minus V0 plus I2, ठीक है, into 9K, and then we have plus V1. ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, and then V0 will be equivalent to
हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पेयर 1 and 9 is simply 9 so this comes out to be 9 volt and the value of V1 was 1 volt so 9 plus 1 is equivalent to 10 volt ठीक है जी now once we have the value of V0 we can find out the value of IL as well and IL will be simply 10 upon 1 ठीक है and 10 upon 1 is nothing but 10 milliampere once you have the value of IL you can find out the value of I0 as well by simply applying Kirchhoff's current law इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या कर देना स्टूडेंट्स वी हैव टू अप्लाई KCL ठीक है जी once you apply KCL you will be able to find out the value of I0 ठीक है बाकी पैरामीटर्स आपने खुद निकालने हैं जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था So students, our main goal was to cover the basic inverting and non-inverting configuration in this course. Since this is the beginning course or the very first course of electronic stream, so this should be more than enough for you at this moment. When you go into the advanced course, वहाँ पे आप इसके advanced circuits like instrumentation, amplifier और साथ साथ और मजीद भी आपको circuits मिलेंगे जिनको आप एनालाइज कर सकेंगे ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप एम्प कैन ऑल्सो बी यूज एज अ डिफरेंशिएटर आप op amp के जरिए से इंटीग्रेटर भी बना सकते हैं ठीक है लेकिन उनको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया ड्यू टू लिमिटेड टाइम एज वेल एंड ऑल्सो बिकॉज इस लेवल के ऊपर यहाँ पे इस कोर्स में अगर हम इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं तो इट इज मोर देन इनफ जाने से पहले इस टॉपिक को खत्म करने से पहले देयर आर सम इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड उनमें से एक है आपके पास आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन जो आपके पास ऑप एम्प अगर आपने सप्लाई यूज की है प्लस माइनस 15 वोल्ट की तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास उसी रेंज में आपको मिल रहा होगा आउटपुट ठीक है बेसिकली इट सैचुरेट्स आउटपुट वोल्टेज की एक सैचुरेशन लिमिट होती है एंड ऑप एम्प का जो आउटपुट होता है इट ऑपरेट्स लीनियरली ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ठीक है यानी एक लिमिटेड रेंज है तब तक ये लीनियर बिहेवियर है उसके बाद आपके पास ये सैचुरेशन इफेक्ट आना शुरू हो जाता है ठीक है सो आप देख सकते हैं जैसे 13 वोल्ट पे सैचुरेट हो गया और माइनस 13 वोल्ट पे सैचुरेट हो सकते हैं तो बेहतर ये है कि इसका जो सिग्नल स्विंग हो वो कुछ इस तरीके से हो कि जो सैचुरेशन में ड्राइव ना करे आपके एम्पलीफायर को सिमिलरली हमने कहा था कि एक आइडियल ऑप एम्प होता है उसकी आप जितने भी करंट ड्रॉ कर लें वोल्टेज रिमेन सेम ठीक है आउटपुट वोल्टेज इज नॉट अफेक्टेड हम कहते हैं कि आइडियली द आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो बट प्रैक्टिकली आपके पास ऐसा होता नहीं है ठीक है देयर इज अ मैक्सिमम आउटपुट करंट जो ऑप एम्प प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको उसकी डेटा शीट से मिलेगा तो फॉर इंस्टेंस अगर आप 741 ऑप एम्प की बात करते हैं तो इसका जो मैक्सिमम करंट है इट्स समवेयर अराउंड 20 मिली एम्पेयर और इसके अंदर बोथ इंक्लूडेड है फीडबैक एंड लोड सो हम इस आई नॉट की बात कर रहे हैं ठीक है सो आई नॉट हैज टू बी समवेयर अराउंड मैक्सिमम 20 मिली एम्पेयर इससे ज्यादा करेंगे तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे That's it for today, students. Thank you so much for being with me. Inshallah, I see you in our next online lecture. Till then, it's Mohammed Uwais signing off. Allah Hafiz.